Today, our topic is export-oriented or import substitution industrialization. This topic is from the 11th chapter, International Economics and Edition, International Trade and Economic Development. So, today most of the economists believe that international trade can contribute significantly to the development process. Until 1980s, an influential minority of economists argued that international trade hindered development in developing nation. क्योंकि उसे ये बिलीव था कि जो डेवलप ये है कि जिस चीज़ का आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है उसमें प्रोड्यूस करें और उस चीज़ को एक्सपोर्ट करें और डिसएडवांटेज है तो उस चीज़ को आप इंपोर्ट करें। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज का ये क्लेम था कि इस तरह तो वो हमेशा प्राइमरी गुड्स ही प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करते रहेंगे और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो से हैं वो इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेंगे और उनकी अर्निंग और डेवलपमेंट तेज होगी, ज़्यादा होगी, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज की कम होगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो सी है वो सिर्फ डेवलप कंट्रीज जो सी है उनकी ग्रोथ को सूट करती है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी यही कहती है कि ईच नेशन स्पेशलाइज इन द कंपैरेटिव एडवांटेज गुड world output will increase and both nation gains, and this says that developing nations should continue to produce primary goods. Developing nations believe that this pattern keeps them from reaping the dynamic benefits of the industrialization. So, but there is complaint. There is a other argument that the importance of the trade to the development cannot be denied. It is claimed that traditional trade theory can be extended to incorporate the changes in the factors, supplies, technology, and the taste. And both developing and developed countries can be benefited from the benefits of international trade. A beneficial factor of trade and economic development क्या हो सकते हैं? It can lead to the full utilization of underemployed resources. It makes possible division of labor, and it provides vehicle for transmission of the new ideas. कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, तो दूसरा कंट्री भी उन चीजों से न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। So the major technologies which are adopted by the developing countries to be industrialized are the import substitution industrialization versus the export oriented industrialization. We will study these in detail. During the 1950s and the 60s and the 70s, most of the developing nations made a deliberate effort to move production away from the primary goods toward the more industrialization प्रोडक्शन। पाकिस्तान की भी एग्जांपल है, बिफोर द 1980s पाकिस्तान की जो भी एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन थी वो ज़्यादातर प्राइमरी गुड्स थी, एग्रीकल्चरल गुड्स थी। मोर देन 90% शेयर जो है एग्रीकल्चरल गुड्स का था। उसके से पहले 60 में 50 में 1950s में तो स्पेशली सिर्फ एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट की जाती थी। उसके बाद पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजी ऑप्ट की वो थी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से इम्पोर्ट्स को पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो सी है टेक्सटाइल से शुरू की और इस इंडस्ट्री को बहुत सी फैसिलिटीज दी, प्रोटेक्शन दी और यही वजह कि टेक्सटाइल आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आफ्टर 1980s ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द IMF and IMF structural adjustment programs along with the other developing countries, Pakistan opted for the open economy and export oriented industrialization. So now we will examine the development through import substitution versus export orientation. During the 1950s, 60s, 70s, most developing nations made an effort to industrialize rather than continue to specialize in the production of the primary commodities for export as prescribed by the traditional trade theory. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फायदे क्या थे कि फास्टर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, द क्रिएशन ऑफ हाई पेइंग जॉब्स to relieve the serious unemployment, underemployment problem which were in the agriculture sector, and they were the major issues of most developing nations. Higher multiplier and accelerator through the greater backward and forward linkages and rising terms of trade and more stable export prices and the earning and the relief from the barriers of payment difficulties. क्योंकि आप प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो उनकी प्राइसेस आपको कम मिलेंगी और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आप इंपोर्ट करेंगे तो जो आपने पेमेंट्स करनी है वो ज़्यादा होंगी और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में रहेगा। इस तरह इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को और टर्म्स ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव, इन सारे प्रॉब्लम के इकट्ठे सोल्यूशन के लिए डेवलपिंग नेशन ने ट्राई की कि वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आते हैं।
अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डेवलपिंग नेशन हैड टू चूज बिटवीन द two strategies. One is import substitution and other is export oriented industrialization. इन दोनों पॉलिसीज के या इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं. An import substitution industrialization strategy has three main advantages. Import substitution mean कि आप import का substitute produce करें, आप चीज़ों को import ना करें और अपनी उस इंडस्ट्री को benefit दें, encourage करें जो import substitute goods produce करती है. इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि द मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट एज एविडेंट बाय द इंपोर्ट्स. जिस चीज़ को आप इंपोर्ट करते हैं उसकी मार्केट पहले से मौजूद है, इसलिए इस बात का कोई रिस्क नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री जो सी है उसकी चीज़ें सेल नहीं होंगी या उसे मार्केट नहीं मिलेगी. दूसरा, इट इज ईजियर फॉर द डेवलपिंग नेशंस टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक मार्केट अगेंस्ट द फॉरेन कंपटीशन then to force developed nations to lower their trade barrier against their manufactured exports. इस सिचुएशन में आप अपने डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो से हैं वहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की तरफ जाते हैं तो वो अगर आपकी गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर रहे तो आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते. लेकिन जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये डेवलपिंग नेशन के अपने इख्तियार में है कि वो उनको इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें. थर्ड बेनिफिट ये है कि फॉरेन फर्म्स आर इंड्यूस्ड टू एस्टैब्लिश सो कॉल्ड टैरिफ फैक्टरीज टू ओवरकम द टैरिफ वॉल ऑफ डेवलपिंग नेशन. कि जो डेवलप कंट्रीज हैं या फॉरेन फर्म्स हैं वो फिर भी वो गुड्स आपकी कंट्री में सेल करना चाहती हैं तो उसके लिए उन्हें अपनी इंडस्ट्री जो सी आपकी कंट्री में इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी या फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरह वो टैरिफ या टैक्स से बच सकते हैं. इस तरह आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी. डिसएडवांटेज क्या है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन ग्रो accustomed to protection from the foreign competition have no incentive to become more efficient. कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जिसको आपने प्रोटेक्ट किया हुआ फॉरेन कंपटीशन से वो कभी एफर्ट करती नहीं कि वो इस तरह की गुड्स प्रोड्यूस कर पाए या वो इतने कंपेटिटिव हो जाए कि आप उनकी प्रोटेक्शन वापस ले लें तो भी वो प्रोड्यूस कर सकें या कम्पीट कर सकें. Second ये है कि import substitution can lead to inefficient industries because the smallness of economies of scale. जब आप स्मॉल पैमाने में सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो सी उन्हें अर्न नहीं कर सकते. थर्ड, आफ्टर द सिंपलर मैन्युफैक्चर इंपोर्ट्स आर रिप्लेस्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट. क्योंकि आप जो डोमेस्टिक गुड्स आम कंज्यूमर यूज की हैं उनकी जगह पे तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन हायर लेवल की गुड्स प्रोड्यूस जो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं वो सारी डोमेस्टिकली यूज नहीं होती. तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वो गुड्स या उनकी इंडस्ट्रीज को आप सेटल नहीं कर सकते अंडर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. दूसरा तरीका क्या है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसके एडवांटेज ये है कि इट ओवरकम द स्मॉलनेस ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट तो छोटी या लिमिटेड होती है. आप एक्सपोर्ट्स करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया आपकी मार्केट है. Secondly, production of manufactured goods for exports requires and stimulate the efficiency throughout the economy. कि आप इसमें कैपिटल इंटेंसिव गुड्स भी और मैन्युफैक्चर गुड्स बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि सारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी इंक्रीज करती है. थर्ड, द एक्सपेंशन ऑफ द मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट्स इज नॉट लिमिटेड बाय द ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट. कि आपके मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट्स जो सी हैं उनको सेल करने के लिए आप लिमिटेड नहीं हो जाते डोमेस्टिक मार्केट पर. इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? पहला कि it may be very difficult for the developing nation to set up export industries because of the competition from the more established and efficient industries in the developed nation. कि आपकी जो न्यूली established इंडस्ट्री है जरूरी नहीं कि एडवांस कंट्रीज की इंडस्ट्री से compete कर सकें. And the developed nations often provide a high level of effective protection for their industries producing simple labor-intensive commodities in which developing nations already have or can soon require a comparative advantage. कि डेवलप कंट्रीज जो से हैं वो उन अपनी इंडस्ट्रीज को हेवीली प्रोटेक्ट करते हैं जिनमें डेवलपिंग कंट्रीज का कंपैरेटिव एडवांटेज मौजूद होता है, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज की एक्सपोर्ट्स लिमिटेड हो जाती है. तो डिफरेंट कंट्रीज ने 1950, 60, 70 में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऑप्ट किया और उसके बाद बहुत से कंट्रीज जो से हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ गया. और पाकिस्तान भी शुरू में इसी तरह इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से अपने टेक्सटाइल सेक्टर को ग्रो किया और उसके बाद WTO और IMF के साथ और स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑप्ट करते हुए ओपननेस और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सी है उसको ट्राई करने की कोशिश की. इस चैप्टर में से हमारा यही मेन एक टॉपिक था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन.
You may ask any question if you have.